آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ ہم پوئٹری سیکشن کے فرسٹ پویم پڑھیں گے جس کا نام ہے الحمد۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ پویم، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ سارے ویڈیوز دیکھیں، سلیبس کے بھی اور ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیوز بنائے گئے ہیں وہ بھی ویڈیو دیکھیں۔ اور ایک خاص گزارش یہ ہے کہ اس ایگزام کی تیاری کے لیے خاص میٹیریل تیار کیا گیا ہے جو میرا ہی تیار کیا ہوا ہے، وہ امیزون پہ اویلیبل ہے، آپ وہ بھی حاصل کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں فرسٹ پویم الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک سلیبس انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر، تلنگانہ اسٹیٹ، انڈیا۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، عربک سیکنڈ ایئر میں آپ کو ٹوٹل 4th سیکشن پڑھنا ہے، 4 سیکشن پڑھنا ہے، جیسے آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ سیکشن نمبر 1 پروس، سیکنڈ سیکشن جو آپ کو پڑھنا ہے پوئٹری، اور 3rd سیکشن گرامر، 4th سیکشن نان ڈیٹیل۔ ابھی جو ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے پوئٹری سیکشن، قسم الشعر۔ تو ابھی ہم شروع کریں گے پوئٹری۔ پوئٹری سیکشن میں ٹوٹل 6 پویم ہے۔ فرسٹ پویم کا نام ہے الحمد، سیکنڈ پویم کا نام ہے احب، 3rd پویم کا نام ہے شاب نبیل، 4th پویم کا نام ہے ایھا الطلاب، 5th پویم کا نام ہے جاریون، 6th پویم کا نام ہے الحاسوب۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے، اس پویم کا نام ہے الحمد۔ یہ ہے آپ کے سامنے الحمد پویم۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے اب پویم۔ یہ پویم کے 5 ورسز ہے۔ فرسٹ ورس کا ترجمہ ہے، اللہ جل شانہ لہ الصفات الباقیہ۔ پہلے ہم پوری پویم پڑھ لیں گے۔ رب السماء والأراضی والمیاہ الجاریہ ویبصر النملة فی جنح اللیالی الداجیہ مقتدر ذو رحمت وآخذ بالناصیہ فخش من اللہ الذی یعلم کل خافیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ جل شانہ، اللہ کی شان بڑی عظیم ہے، لہ الصفات الباقیہ، اسی کے صفات باقی رہنے والے ہیں۔ رب السماء والأراضی والمیاہ الجاریہ، آسمان اور زمینوں کا رب ہے، والمیاہ الجاریہ، اور سمندروں کا، بہتی ندیوں کا رب ہے، وَيُبْصِرُ النَّمْلَةَ فِي جَنَحِ اللَّيَالِ الدَّاجِيَةِ، جو یعنی اللہ چونٹی کو دیکھتا ہے رات کی تاریکی میں، رات کے تاریک حصے میں۔ مقتدر ذو رحمت، بڑی قدرت والا ہے، رحم والا ہے، وآخذ بالناصیہ، اور پیشانی پکڑ کر مواخذہ کرنے والا ہے، یعنی پیشانی پکڑ کرنے والا ہے، پوچھ تاچھ کرنے والا ہے۔ فخش من اللہ الذی یعلم کل خافیہ،
लिहाजा अल्लाह से डरिए जो हर छुपी हुई चीज को जानता है। ये थी पोयम और उसका ट्रांसलेशन। इसकी समरी इंशाअल्लाह इसके बाद पढ़ी जाएगी, सुनाई जाएगी। इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। जिसको जिसमें आसानी हो वो समरी उस लैंग्वेज में लिखें, लेकिन रोमन स्क्रिप्ट हरगिज इस्तेमाल ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप पोयम पढ़े जिसका नाम था अल्हम्दु। इस पोयम में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और अल्लाह तबारक व तआला की शान बयान की गई है। इस कायनात को, सारी दुनिया को, दुनिया के हर ज़र्रे को, आसमानों को, समंदरों को, दरियाओं को, झीलों को, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया। हर चीज़ के ऊपर अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ही तबारक व तआला क़ादिर मुतलक़ है, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। वही क़ादिर मुतलक़ है, हर चीज़ पर हुकूमत करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला ही की है। कोई चीज़ उसे छुपी हुई नहीं है, उसी की शान बड़ी है और हर चीज़ उसी के हुक्म के तहत चलती है। जब तक वो हुक्म ना दे कोई हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह के हुक्म से ही हरकत कर सकती है और अल्लाह के हुक्म से हम सांस ले सकते हैं। हर चीज़ अल्लाह की कुदरत में है और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला हर छुपी हुई चीज़ को देखता है। दिन में भी देखने की ताकत है, रात में भी देखने की ताकत है। हर छोटी सी छोटी चीज़ को देखता है, बल्कि रात के अंधेरी में चोंटी को देख भी सकता है और चोंटी की आहट महसूस भी कर सकता है। ये है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, अल्लाह तबारक व तआला की शान। और यकीनन सारे बंदों को भी वो देख रहा है, सारे बंदों की हरकतों से वाकिफ है। और अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है, बख्शने वाला है, गुनाहों की मग़फ़िरत करने वाला है, लेकिन साथ साथ अल्लाह बड़ी पकड़ करने वाला भी है। अल्लाह अज़ाब देने वाला भी है और जब अल्लाह अज़ाब देने पर आता है तो कोई बचा नहीं सकता और कोई बच नहीं सकता। इस वजह से हम इंसानों को चाहिए कि अल्लाह से डरें, उसी ज़ात से डरें, किसी और से नहीं। अल्लाह से डरें और अल्लाह के हर हुक्म की इत्तिबा करें और उसको मानें। जी, उर्दू की समरी के बाद ये है समरी इंग्लिश में। जिसको इंग्लिश में आसानी हो वो इंग्लिश में लिखें और जिसको उर्दू में आसानी हो वो उर्दू में लिखें, जो अभी मैंने आपको सुनाई है। लेकिन रोमन स्क्रिप्ट हरगिज यूज ना करें, रोमन इंग्लिश में हरगिज ना लिखें। उसके बाद इस पोयम की कुछ एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, जैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहा है वर्ड मीनिंग। चलिए हम वो पढ़ेंगे अब, वर्ड मीनिंग। इसमें फर्स्ट वर्ड है जल्ला, अजीम शान वाला। सिफतुन अच्छाइयां, बाकियतुन बाकी रहने वाली। रब रब परवरदिगार, अल्लाह पालने वाला। समा समा आसमान। अर्जुन जमीन। मियाहुन पानी। जारियतुन बहना। अन्नमलतु चूंटी। जनाहुन हिस्सा। लैलुन रात। दाजियतुन तारीक अंधेरी रात, अंधेरा। मुक़तदिरुन कुदरत वाला, ताकत वाला। ज़ू रहमतिन रहम करने वाला। आखिजुन पकड़ने वाला। उसके बाद कुछ और वर्ड है। नासियतुन पेशानी। अख्श अख्शी है ये।
डरना, खाफियतुन, छुपी हुई चीज। ये थे वर्ड मीनिंग, कुछ वर्ड है और उसके मीनिंग है। ये फाइनल एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए आप वो सारे वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, जो हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद और एक बिट जो हमको पढ़नी है सिंगुलर और प्लूरल की है, वाहिद और जमा, वाहिद और जमा। और ये भी बिट एग्जाम में कैसे आएगी, कहां पर आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो वर्ड बनाए गए हैं वो देखिए, जो बिट्स बनाए गए हैं, जो वीडियोस तैयार किए गए हैं, वो सारे वीडियोस देखिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सिफतुन है ये सिफतुन, हाँ गलती से आ गया है, ये सिफतुन। यह है सिफतुन, उसकी जमा है सिफात। समाउन, आसमान, समावात उसकी जमा। जाहिल, अनपढ़, नावाकिफ। जुहाला उसका प्लूरल है। अर्जुन, जमीन, उसका प्लूरल अराजी। जनाहुन, हिस्सा। अजनिहतुन उसका प्लूरल। लैलुन, रात। लयाली उसकी जमा है। नासियतुन, नासियतुन पेशानी। नवासी। ज़म्बुन गुनाह। जुनूब उसकी जमा है। ये थी बिट सिंगुलर और प्लूरल की। जैसे कि शुरू में ही मैं बताया था कि ये बिट फाइनल एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए आप वो सारे वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट वर्ड। सबसे पहला वर्ड है दाजियतुन। दाजियतुन के माने आते हैं तारीख, अंधेरा। उसका अपोजिट है मुनव्वरातुन, जिसके माने है रोशन, चमक। ज़ू रहमतिन, रहम करने वाला। उसका अपोजिट है ज़ू कहरतिन, कहर वाला, गुस्से वाला। आलिमुन, जानने वाला। उसका अपोजिट जाहिलुन, नावाकिफ। अस्समाउ, आसमान। अल अर्ज़ु, जमीन। लैलतुन, रात। नहारुन, दिन। ये थे कुछ वर्ड जो अपोजिट वर्ड है। ये भी एग्जाम में कौन से बिट में आएंगे या नहीं, उसके लिए भी यही कहूंगा कि वो सारे वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो बिट हमको पढ़नी है वो है गिव द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस। नीचे कुछ वर्सेस लिखे हुए रहेंगे, उन वर्सेस का आपको रेफरेंस देना होगा, पहचानना होगा कि वो वर्सेस कौन सी पोयम के हैं। उसके बाद आंसर लिखना है, और आंसर बहुत आसान है, आप फर्स्ट ईयर में भी लिख चुके हैं, वो वही आंसर है, सिर्फ पोयम का नाम चेंज होगा। जैसे, और मैं लास्ट में इंशाल्लाह एक हिंट भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्स कौन सी पोएम के है, और हिंट से आपको आसानी होगी क्योंकि पूरे वर्सेस याद करना तो आपके लिए मुश्किल होगा। अल्लाहु जल्ल शानुहु लहू अस्सिफातु अल-बाक़िया। उसका आंसर है, देखिए यहाँ पे, हाज़ा अश्शेर मिन अन-नज़म अल-हम्दु।
हाजा माने ये, अशेर माने शेर, मिन माने की, नज़म माने पोयम। ये शेर फला पोयम की है। उसके बाद पोयम का नाम लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है अलहम्दु, पोयम का नाम है। उसके बाद सेकेंड वर्स है रब्बुस समाई वल अरा ज़ी वल मियाहिल जारिया। ये कौन सी पोयम की है? तो उसका आंसर है, देखिए, हाजा अशेर मिन अन नज़म अलहम्दु। हाजा माने ये, शेर माने शेर, मिन माने की, नज़म माने पोयम। ये शेर फला पोयम की है। उस पोयम का नाम अलहम्दु। चूंकि हम ये पोयम पढ़ रहे हैं अलहम्दु, इसमें से यहाँ पर 2 के 2 अशार उसी पोयम के लिए गए हैं। लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इन 6 पोयम में से किसी भी पोयम के वर्सेस आ सकते हैं, बल्कि आएंगे। आपको पहचानना होगा कि कौन सा वर्स यानी कौन सा शेर कौन सी पोयम का है। मैं लास्ट में हिंट बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शेर कौन सी पोयम का है। हर पोयम में एक तरीका बताऊंगा इंशाअल्लाह। तो यहां पे देखिए, अभी मैं आपको हिंट बताऊंगा। हिंट बताने से पहले चलिए मैं आप लोगों को हिंट बता रहा हूं कि कैसे पहचानेंगे। आप गौर करें, इस पोयम के हर वर्सेस का लास्ट लेटर ये गोलता है। शायद आपको दिखाई दे रहा है, गोलता। ये इस तरह का निशान रहता है, इसको कहते हैं गोलता। इस पोयम के जितने भी वर्सेस है, हर वर्सेस का लास्ट लेटर गोलता है। मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पूरी पोयम के वर्सेस देख लेंगे ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इसको पहचानने का तरीका क्या है। देखिए, यह है आपके सामने पोयम। इस पोयम के लास्ट लेटर को देखिए आप। यहां पर देखिए गोलता, यहां पर ये भी गोलता, ये भी गोलता, यहां भी गोल और यहां भी गोलता। अगर किसी भी वर्ष के लास्ट में गोलता आ जाए इस तरीके से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फर्स्ट पोयम है अलहम्दु। इस पोयम का नाम है अलहम्दु। उसके बाद आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं हाजा अशेर मिन अन नज़म। शायद आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। तो चलिए हम जहां पढ़ रहे थे वहीं पर चलेंगे। तो ये पोयम, ये बिट हम पढ़ रहे थे रेफरेंस की। तो मुझे जहां तक ख्याल है आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि इसको पहचानने का तरीका ये है, लास्ट लेटर देखने। लास्ट लेटर गोलता है तो समझ जाना चाहिए कि ये पोयम है अलहम्दु। तो चलिए हम इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना है जो बहुत ही आसान है अगर आप थोड़ी तवज्जो देंगे। अगर तवज्जो ना दे, पढ़ेंगे नहीं और देखेंगे नहीं सारे वीडियोस, तो शायद आपको दुश्वारी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप सारे वीडियोस देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लिमन अस्सिफातु अल बाकियतु। लिमन किसके लिए, अस्सिफात, सिफात के माने सिफात, लेकिन आप समझने के लिए याद रखें अच्छाइयां। अल बाकियतु हमेशा रहने वाली। पूरा तर्जुमा हो गया, किसके लिए है हमेशा रहने वाली सिफात, किसके लिए है। उसका आंसर है यहां पर देखिए, लिमन हटा दीजिए सिर्फ, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। अस्सिफातु अल बाकियतु लिल्लाह, अल्लाह के लिए। अस्सिफातु अल बाकियतु लिल्लाह, हमेशा रहने वाली सिफात अल्लाह के लिए है।
यहाँ पे जबर जेर पेश आपके आसानी के लिए लिखे गए हैं, वरना जबर जेर पेश डालना जरूरी नहीं है। डाले तो कोई हरज नहीं है, लिखे तो कोई हरज नहीं है, वरना ना लिखे तो भी कोई हरज नहीं। पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। सेकंड क्वेश्चन है इंशाअल्लाह, हल अल्लाहु जल्ल शानुहु। हल के माने क्या? अल्लाह के माने अल्लाह, जल्ला माने अजीम, शान माने इज्जत, जल्ला के माने बड़ी की भी है। क्या अल्लाह की शान बहुत बड़ी है? क्या अल्लाह की शान बहुत बड़ी है? उसका आंसर नाम, अल्लाहु जल्ल शानुहु। नाम के माने है हाँ, अल्लाह के माने है अल्लाह, जल्ला के माने बड़ी है, शान के माने शान इज्जत। हाँ, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमाजा नक्शा मिन अल्लाह। लिमाजा क्यों, नक्शा हम डरते हैं, मिन के माने से, अल्लाह के माने अल्लाह। हम अल्लाह से क्यों डरते हैं? हम अल्लाह से क्यों डरते हैं? उसका आंसर है, देखिए, नक्शा मिन अल्लाह लिअन्नहु यअलमु कुल्ल खाफियतिन। नक्शा हम डरते हैं, मिन के माने से, अल्लाह के माने अल्लाह, लिअन्नहु क्योंकि वो, लिअन्नहु के माने क्योंकि वो, यअलमु जानता है, कुल्ला तमाम, खाफिया छुपी हुई चीज। पूरा तर्जुमा करेंगे, हम अल्लाह से डरते हैं क्योंकि वो हर छुपी हुई चीज को जानता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, शायद आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, आए या ना आए आप कमेंट में जरूर लिखना ताकि हमको मालूम हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हल। हल के माने है क्या? अल्लाह के माने अल्लाह, यअलमु जानता है, कुल्ला माने तमाम, खाफिया माने छुपी हुई चीज। क्या अल्लाह हर छुपी हुई चीज को जानता है? क्या अल्लाह हर छुपी हुई चीज को जानता है? उसका आंसर है नाम। अल्लाह माने अल्लाह, नाम के माने हाँ, अल्लाह के माने अल्लाह, यअलमु माने जानता है, कुल्ला माने तमाम, खाफिया माने छुपी हुई। हाँ, अल्लाह हर छुपी हुई चीज को जानता है। हाँ, अल्लाह हर छुपी हुई चीज को जानता है। फिफ्थ वन और लास्ट वन क्वेश्चन, और उसका आंसर है मन रब्बुस समाई। मन के माने है कौन, रब के माने है अल्लाह, अस्समा, समा के माने आसमान, आसमानों का रब कौन है? ये मन हटा दीजिए, सिर्फ अल्लाह लिखना है, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है। अल्लाहु रब्बुस समाई, आसमानों का रब अल्लाह है। ये थे क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। यहां पे हमको पढ़ना है, ये भी क्वेश्चन आंसर से, लेकिन ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर से। शायद आपको अच्छी तरह मालूम है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। मन रब्बुस समाई, मन के माने कौन, रब के माने अल्लाह, अस्समाई आसमान, आसमानों का रब कौन है? उसका आंसर है अल्लाह। सेकंड क्वेश्चन है, हल अल्लाहु युबसिरु अन्नमलता। हल के माने क्या, अल्लाह के माने अल्लाह, युबसिरु माने देखता है, अन्नमला, अन्नमला के माने है चूंटी। क्या अल्लाह चूंटी को देखता है? उसका आंसर है नाम, हाँ, अल्लाह चूंटी को देखता है। थर्ड क्वेश्चन है, मन हुवा ज़ू रहमतिन। मन के माने कौन, हुआ के माने है, जू के माने वाला, रहमा माने रहम, रहम वाला कौन है, रहम करने वाला कौन है? उसका आंसर है अल्लाह, अल्लाह ही है रहम करने वाला। थर्ड क्वेश्चन है, हल नक्शा मिन अल्लाह। हल के माने क्या, नक्शा के माने हम डरते हैं, मिन के माने से, अल्लाह के माने अल्लाह। क्या हम अल्लाह से डरते हैं? उसका आंसर है नाम,
ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کے بعد 5th ون کوشچن اور اس کا آنسر ہے حل اللہ یقتدر علی کل شیء. حل کے معنی ہے کیا، اللہ کے معنی اللہ، یقتدر قدرت رکھتا ہے، علی معنی پر، کل معنی تمام، شیء معنی چیز. کیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اس کا آنسر ہے نعم، ہاں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ تھے آپ کے 1 ورڈ کوشچن آنسرز. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہاں پہ ہے دیکھیے فل ان دا بلینکس. یہ بھی بہت آسان ہے، اور یہ فل ان دا بلینکس کون سے بٹ میں آئیں گے یا کہاں پر آئیں گے، کیسے آئیں گے، اس کے لیے سارے ویڈیوز دیکھیے فائنل ایگزام کے لیے جو تیار کیے گئے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. جل شأنہ ڈیش جل شأنہ، یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو اللہ، اللہ جل شأنہ. سیکنڈ لہو الصفات ڈیش الباقیہ، اسی کے لیے ہمیشہ رہنے والے صفات ہے، اچھائیاں ہیں. اس کے بعد 3rd ون ہے رب ڈیش والاراضی السما، اس کا آنسر ہے السما، رب السماء والاراضی، آسمان اور زمین کا رب ہے. 4th ون یبصر ڈیش فی جناح اللیالی الداجیہ، اس کا آنسر ہے النملہ، یبصر النملۃ، وہ رات کی تاریک حصے میں بھی چونٹی کو دیکھ لیتا ہے. اس کے بعد 5th ون ہے ذو ڈیش ذو رحمت مقتدر ذو رحمت، مقتدر ذو رحمت، بڑی قدرت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. نیچے بھی آنسر لکھے ہوئے رہیں گے لیکن سیریل وائز نہیں رہیں گے، اس میں سے آپ کو چوائس کر کے چن کر لکھنا ہے کہ کہاں پر کون سا ورڈ فٹ ہوگا. تو یہ تھی بٹ فل ان دا بلینکس کی. ہم اور آگے بڑھیں گے. اس کے بعد جو بٹ ہم کو پڑھنا ہے یہ بھی بہت اہم بٹ ہے. کمپلیٹ دا فالوئنگ ورڈز اینڈ ایکسپلین. ذرا غور سے پڑھنا یہ چیز. کمپلیٹ دا فالوئنگ ورڈز اینڈ ایکسپلین. یہاں پر کچھ ورڈ ڈیلیٹ رہیں گے، ان ڈیلیٹ ورڈ کو آپ لکھنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، یہ پورا ورڈ کمپلیٹ کرنا ہے. اور صرف ان 2 ورسز کا ایکسپلینیشن بھی لکھنا ہے، صرف ان 2 ورسز کا، پوری پوئم کا نہیں، صرف ان 2 ورسز کا ایکسپلینیشن بھی لکھنا ہے. تو چلیے ہم پڑھیں گے. پہلے شاید آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سیکنڈ ایئر میں فرسٹ بٹ رہے گی. اس وجہ سے آپ فائنل ایگزام کے لیے جو تیار کیے گئے ہیں ویڈیوز وہ دیکھیں، اور ہو سکے تو بک بھی خرید لیں، آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. اللہ جل ڈیش ڈیش الصفات الباقیہ رب السماء ڈیش ڈیش والمیاہ الجاریہ. اس کا آنسر کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آنسر ANS مانے ہے آنسر. یہاں پہ کمپلیٹ لکھا ہوا ہے. دیکھیں اللہ جل شأنہ لہو الصفات الباقیہ رب السماء والاراضی والمیاہ الجاریہ. یہ ہے اس کا آنسر. اور نیچے ایکسپلینیشن ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے جو آپ کو لکھنا ہے. یہ بھی اون لینگویج میں لکھ سکتے ہیں، چاہے آپ انگلش میں لکھیں چاہے ایکسپلینیشن آپ اون لینگویج میں لکھ سکتے ہیں، انگلش، اردو یا عربک. رومن میں ہرگز نہ لکھیں. شاید آپ کو یہ بٹ اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے. تو چلیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم پھر دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے آپ کے مخصوص دعا میں یاد رکھیں، اور اس کے لیے جو بک تیار کی گئی ہے وہ بک بھی خرید لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.